उसमें ये है कि हम समझते हैं कि it is our major responsibility to increase the insurance penetration in Pakistan, which is one of the lowest in the world. जी आगे चलिए. अच्छा, इसकी जो वजह है एक्चुअली जो एक तो बहुत स्लगिश ग्रोथ है इंडस्ट्री की. जहाँ तक पेनिट्रेशन है, penetration is only 0.7% of GDP since the last 10 years. It has been absolutely stagnant, a little up and down, but more or less it has stayed stagnant at 0.7% of GDP. इसकी वजह भी हम देखेंगे आगे, बहुत सी इसकी रीजंस है. इसी तरह डेंसिटी इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ओनली $6.5 per capita. आगे चलिए. हालांकि ये यहाँ रेलेवेंट नहीं है, इसके आगे चलिए. ये देखिए आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये डेंसिटी हम दिखा रहे हैं. वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड. और आप देखें मलेशिया का, आप देखें वेयर द डेंसिटी इज, there is also a huge gap between us and India. So Pakistan is just at the lowest. आगे कीजिए. ये पेनिट्रेशन का भी यही हाल है. अगर आप पेनिट्रेशन का देखें तो again we are comparing ourselves to our regional competitors, and we are at the lowest. Next. This is where we stand, globally. Pakistan is 0.03%, number 62nd in the world and number 17 in Asia. अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी. बहुत सी रीजंस हैं. इकोनॉमिक, देखिए इस वक्त ये है कि ऑलमोस्ट द एंटायर इंडस्ट्री विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कंपनीज, वेरी फ्यू, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन द कमर्शियल लाइन्स ऑफ बिजनेस, जिसको इन अदर वर्ड्स आई से होलसेल बिजनेस या कंपनीज का बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस, सब उसी पे फोकस कर रही हैं. अच्छा, उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन पे है, पॉलिटिकल सिचुएशन पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं. सिंस all the companies are focusing on the commercial lines of business and looking at the situation in the country is bankrupt, all of us know that, and there are no possible signs of improvement in the near future. We are also going through a war on terror. There is serious political instability in the country. There is a serious law and order issue in the country. तो ये सारी, क्योंकि ये बिजनेस का जो मॉडल है वो इसी के साथ लिंक्ड है और इसके नियर फ्यूचर में अच्छे होने की कोई हालात हमें नजर नहीं आते, इवन इफ वी ट्राई टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मैं पीछे चले प्लीज, अभी अच्छा, नंबर 2 भी मैंने डिस्कस कर लिया कि इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, आई मीन वी आर अ कंट्री ऑफ 180 मिलियन और पेनिट्रेशन आपने देख ली है कितनी कम है, डेंसिटी भी आपने देख ली है कितनी कम है. अब देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अब पॉपुलेशन को रीच करने का, वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी और द प्रोडक्ट्स और द इनोवेशन और द स्ट्रेटजी or the we do have the distribution channels, but unless and until the companies reposition themselves and they realize, you see, economic growth की possibility नहीं है, ये business नीचे से नीचे जाएगा और ये size of the pie shrink करेगा. अब हमें अपने आप को reposition करना चाहिए to reach the masses, to reach the big numbers, which is a different ball game altogether, for which the companies have to have a different strategy and a different sales mechanism and stuff like that. अच्छा, टेक्नोलॉजी का ये है कि unfortunately बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज है पाकिस्तान में, वो अभी तक टेक्नोलॉजी को, जैसे मैं हर दफा कहती हूँ, unfortunately they think that it is an expense. When companies come and see us on a regular basis, I mean, we always tell them, please invest in technology, state-of-the-art, ERP system and stuff like that. There are some companies, the new ones, जैसे ये कैप्टन साहब यहाँ बैठे हुए, इनकी कंपनी है, कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, which is a very good thing to begin with. But generally companies अब इसको expense समझती हैं. They do not realize this is an investment. Unless they invest in technology, they are going nowhere. The future looks very, very dismal and grim. अब ये management practices का ये है कि most of the companies, I'll tell you something very interesting. When I joined Adamji, when I rejoined Adamji in the year 2004, Adamji being Adamji, huge brand, a big name, and all that stuff. They did not even have an HR department.
they ran the company through the admin department. It's extremely unfortunate, the vision of the management, which did not change over a period of time. The world around us had changed and everything. और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो नहीं है, और दूसरी बात है मैनेजमेंट नो हाउ बहुत कम है. You see, technical know-how in the commercial lines of business is great in this industry. I mean, especially in a company like EFU, I think there is a wealth of technical knowledge as far as the commercial lines of business is concerned. But I do not have to say the same thing for management know-how. Management is a science. मैनेजमेंट नो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज की तरक्की करने के लिए. आई एम सॉरी आई यूज्ड लिटिल हार्श वर्ड. एक्चुअली मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी ही नहीं थी, ये मैंने किसी और के लिए एक दफ़ा बनाई थी. आई एम जस्ट टेलिंग, आई वुड नॉट हैव नो ऑफेंस मेंट टू एनीबॉडी. एंड देन ऑफ कोर्स प्रोडक्ट, एवरीबडी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, एवरीबडी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. अनफॉर्चुनेटली हुआ ये तकाफुल वाले आए, ठीक है, शरिया कंप्लायंस एंड स्टफ लाइक दैट, वेरी गुड, so it's another thing to offer to people who want to buy sharia compliant, but same product, different name. Everything is the same. सारे कुछ लिपेट के उसका हरा नीला लाल कागज चेंज करे वगैरह, ये शरिया कंप्लायंट है. I mean, I don't want really PM, and I don't want to, this is my observation, my personal opinion, कि प्रोडक्ट की इनोवेशन नहीं है. अगर वही प्रोडक्ट है जो कन्वेंशनल वाले बेच रहे हैं, तो भी नए प्रोडक्ट आप लेके आए. प्रोडक्ट अच्छा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की कोई नहीं है. आदम जी में हमने फिर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बनाई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाई, और ये जो कहते हैं ना कि इंश्योरेंस अवेयरनेस नहीं है. क्यों नहीं अवेयरनेस भाई? आपने क्यों नहीं पैसा खर्चा अवेयरनेस पे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लुक एट द बैंक्स, लुक एट द टेलीकॉम सेक्टर, दे हैव गॉट ह्यूज मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स. They evaluate the value of the brand. अभी ये कह रहे हैं खुदा मेरे अबू सलामत रहे. Of course, State Life is the biggest brand in life insurance in Pakistan because of their monopolistic and so many other issues. But हम आदम जी में आए, हमने कहा ब्रांड की क्या वैल्यू है. There are organizations, companies in the market जो आपकी ब्रांड को evaluate करते हैं, quantify करते हैं कि आपकी ब्रांड की क्या वैल्यू है. उस ब्रांड की वैल्यू की वजह से this is the advantage, this is the competitive advantage. So what I'm trying to say is marketing के ऊपर कोई खर्चा नहीं है, marketing की कोई departments नहीं है. They don't believe in marketing. ये जो B2B selling है या B2C में selling है, उसका वो push and pull strategy, all these different things are not taken care of. And of course we have already covered that. अगर आपने इंश्योरेंस अवेयरनेस क्रिएट नहीं की तो कहाँ से आएगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू आर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यू क्रिएट इंश्योरेंस अवेयरनेस, यू एलोकेट बजट्स एंड स्टफ लाइक दैट. अच्छा, इसके ऊपर तो बात होगी. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि ये हमने देखा 2006 से लेकर और 2009 तक का बनाया है. 2006 में लाइफ जो है सेक्टर पाकिस्तान में वो नॉन लाइफ से 50% कम था. आप देखिए, वो मेरा ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा, लेकिन आप इस एंड पे देखिए, ऑलमोस्ट 50% लेस देन द नॉन लाइफ. In other parts of the world, in most mature markets, also in emerging markets, the life sector is much bigger than the non-life sector. यहाँ पे उलटा. अब क्या हुआ? अब आप देखिए 4 साल में क्या हुआ. They are neck to neck. This is the year 2009. Neck to neck है, और हमारा ये ख्याल है कि 2010 में लाइफ का सेक्टर बहुत आगे बढ़ जाएगा. उसकी भी अलग रीजंस है. एक तो बहुत अच्छे काम किए हैं लाइफ सेक्टर ने, जो नॉन लाइफ ने नहीं किए. अभी हमारे सामने बैठे हैं, इनके रोज अखबारों में ऐड आ रहे हैं, न्यू जुबली लाइफ के, वो HBL वाले कह रहे हैं थैंक्स अ बिलियन एंड ऑल दैट. दे हैव डन मोर देन 1 बिलियन फ्रॉम वन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल व्हिच इज बैंक एश्योरेंस. दे हैव यूटिलाइज्ड देयर नेटवर्क एंड सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स. सो एक तो ये है. दूसरा ये कि हमारा अभी पीछे माइक्रो इंश्योरेंस का जब वो था हमारी वर्कशॉप, उसमें भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ सेक्टर, मेरा अपना ख्याल है, बीइंग अ नॉन लाइफ पर्सन, the major reason why life has grown like this and non-life has gone down like this is because life is focusing on individual, which is the personal lines of business in general insurance, जो हमारी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, या जो एक रिटेल इंश्योरेंस है. ग्रोथ इंडिविजुअल से आई है. क्यों? आपका 180 मिलियन की आबादी है, आप उनको अप्रोच करें. आप उसी ग्रुप को, उसी कंपनियों को जा रहे हैं, बार बार रेट काट के उसको छोटा किए जा रहे हैं. सो वेयर इज द ग्रोथ गोइंग टू कम फ्रॉम? सो आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई